Today we will study Rutherford alpha scattering experiment, and that is the discovery of nucleus. So Rutherford conducted an experiment by bombarding a thin sheet of gold with alpha particles. So Rutherford ने क्या किया था? This is the thin sheet of gold, and these are alpha particles. These are alpha particles. Rutherford conducted an experiment by bombarded. These are alpha particles. These are alpha particles. Alpha particles are helium ions. Bombarded a thin sheet of gold. यहाँ पे है gold की एक foil है thin, and these are beam of alpha particles produced from some radioactive source. For example, this is a radium. Radium is a radioactive source. Radioactive sources are produced alpha, beta, gamma rays. So for example here radium, source of alpha particle. Radium क्या produce कर रहा है student? Alpha particles. So this is a beam of alpha particles, and this beam strike over the thin gold foil, and he studied the trajectory of these particles. उसने क्या study किया? Trajectory means shape. यहाँ पे जो alpha particles thin gold foil पर टकराने के बाद उनकी जो trajectory आई उसको उसने स्टडी किया था. So he studied the trajectory of these particles after their interaction with the gold foil. So when beam of alpha particles strike over the thin gold foil, it means this beam of alpha particles after strike over this gold foil, these alpha particles are scattered over different directions. और ये स्टडी किसने किया था? रदरफोर्ड ने. किसने स्टडी किया था? रदरफोर्ड ने. सो एक बार फिर से, रेडियम इज ए रेडियोएक्टिव मटेरियल which produces alpha particles, and the beam of alpha particles strike over the thin gold foil, and this is a detector. This is a detector which is made of fluorescent material like zinc sulfide. When these alpha particles, because alpha particles are material particles, when these alpha particles strike over the fluorescent material, then at that portion this material glows. तो ये क्या करेगा? ग्लो करेगा. जब अल्फा पार्टिकल इस डिटेक्टर पे टकराएंगे तो यहां पे क्या होगा? ग्लो होगा. क्या होगा? ग्लो होगा. ये जो आपका मटेरियल है, डिटेक्टर है, ये ग्लो करेगा जब अल्फा पार्टिकल यहां पे टकराएंगे, क्योंकि दिस डिटेक्टर इज मेड अप ऑफ फ्लोरेसेंट मटेरियल. सो क्या स्टडी हुआ? मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू फॉयल. सो 99% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, स्टूडेंट ये देखिए, ये बीम है, ये काफी मोटी बीम है, इसकी विड्थ काफी ज्यादा. इट मींस most of the alpha particle strike straight away without any deflection, without suffer any deflection. So most of alpha particle passed straight from this foil. इस foil से टकराने के बाद alpha particle 99% alpha particle straight निकल गए, और यहां पे उन्होंने ग्लो प्रोड्यूस किया. इसका मतलब यहां पे अगर ग्लो आ गए, इसका मतलब क्या है कि 99% alpha particle suffers no deflection, and few alpha particles are slightly deflected. This is the deflection produced by few alpha particles. So after strike over these alpha particles, some alpha particles are deflected through some small angles. So ये आपके alpha particles, few alpha particles are slightly deflected, and a very small number of alpha particles are significantly deflected. ये देखिए, इनका एंगल क्या स्टूडेंट? 90 डिग्री से ज्यादा. ये जो एंगल आ गया, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ये क्या आ गया स्टूडेंट? 90 डिग्री से ज्यादा. सो वेरी स्मॉल अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड थ्रू वेरी लार्ज एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री, एंड 0.0001% अल्फा पार्टिकल्स रिट्रेसेस इट्स पाथ. मतलब टकराने के बाद वो वापस आ गए. क्या आ गए? वापस आ गए. सो 0.00001% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड थ्रू 180 डिग्री. 180 डिग्री मींस अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल पे टकराने के बाद वापस आ गए. कितने? बहुत कम.
0.001%. सो फिर से देखिए, दिस इज अ रेडियो एक्टिव मटीरियल, रेडियम. Radium is a source of alpha particles, and these beam of alpha particles are strike over this thin gold foil, and this is a screen detector. This is a luminescent screen to detect scattered alpha particle. ये screen क्या detect कर रही है? Alpha particles, because ये जो screen है किसकी बनी हुई है? Fluorescent material की, for example zinc sulfide की. Whenever this material particle strike over this screen, then at that point क्या होगा स्टूडेंट? वो ग्लो करेगी स्क्रीन. क्या करेगी? ग्लो करेगी. हमें पता चल जाएगा कि कोई मटेरियल पार्टिकल इस स्क्रीन के ऊपर टकराया है. सो 99% अल्फा पार्टिकल्स आर स्ट्रेट थ्रू फॉयल, पास स्ट्रेट थ्रू फॉयल, मींस देयर इज नो डिफ्लेक्शन. 99% अल्फा पार्टिकल्स सफर नो डिफ्लेक्शन. इट passes straight from the foil, and a very few alpha particles are slightly deflected. These are slightly deflected alpha particles after strike from this thin gold foil, and very few alpha particles are deflected through large angle greater than 90 degree, and very few 0.001% alpha particles are retraces their path. It means they go back और सफर एंगल 180 डिग्री, गो बैक फ्रॉम देयर पाथ. सो इससे क्या रिजल्ट निकला? इन ऑब्जर्वेशंस को हम अभी स्टडी करते हैं. ठीक है स्टूडेंट. सो अल्फा पार्टिकल, सबसे पहले देखिए अल्फा पार्टिकल क्या है. अल्फा पार्टिकल इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. स्टूडेंट सबसे पहले आपने ये देखना है कि अल्फा पार्टिकल क्या है? डबल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, हैविंग 2 यूनिट्स ऑफ चार्ज. इसका जो चार्ज है वो कितना है? 2 यूनिट. हीलियम 2 आयन 2 plus. This is a alpha particle. This is a alpha particle, helium ion, double positive charge, and mass. और स्टूडेंट इसका जो मास है वो कितना है? 4 AMU. कितना है? 4 AMU. हीलियम मास इज 4 AMU, एंड एटॉमिक नंबर मींस उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितना है? 2 यूनिट. कितना है? 2 यूनिट. दिस इज ए अल्फा पार्टिकल. दिस इज ए अल्फा पार्टिकल, एंड दे आर emitted. स्टूडेंट वो अल्फा पार्टिकल कहां से emit हुए? फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमने रेडियम और पोलोनियम लिया हुआ था उससे क्या emit हुआ? अल्फा पार्टिकल्स. एंड दीज फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो उन्होंने जब गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक किया तो दैट अल्फा पार्टिकल्स पेनिट्रेट थ्रू द मैटर, बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स हैव considerable amount of energy, so that's why they penetrate from the thin gold foil. The fast moving alpha particles are allowed to strike a very thin gold foil in vacuum. तो वो उससे क्या करके पास करके स्ट्राइक करने के बाद. और ऑब्जर्वेशंस क्या आई वो देखते हैं. सो ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. A major fraction of alpha particles bombarded towards the gold sheet passed straight through without any deflection. So student, अब मैंने आपको पहले बता दिया था ये वाले जो अल्फा पार्टिकल्स हैं जब ये थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक किए तो टकराने के बाद जो ये अल्फा पार्टिकल्स बाहर आ गए थिन गोल्ड फॉइल से, दे सफर 99% ऑफ अल्फा पार्टिकल सफर नो डिफ्लेक्शन. 99% ऑफ अल्फा पार्टिकल सफर नो डिफ्लेक्शन. इसका मतलब क्या है? मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी. इसका मतलब क्या है? दिस इज द एटम. अब जब मोस्ट ऑफ द एटम्स स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, दे गो स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, इट मीन्स जो एटम का 99% पोर्शन है स्टूडेंट वो क्या है? एम्प्टी है. क्या है? एम्प्टी. सो पहली ऑब्जर्वेशन क्या आई कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी, क्योंकि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे क्या रिजल्ट आया? पहले पॉइंट का कि 99% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर स्ट्रेट गो फ्रॉम थिन गोल्ड फॉयल आफ्टर स्ट्राइक from it, and
अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल्स किसी भी अंदर, जो अंदर एटम के अंदर पार्टिकल्स हैं उनके साथ टकरा के उनकी कोई डिफ्लेक्शन नहीं आई, इसका मतलब जो एटम है वो क्या खाली है, क्या है, एम्प्टी है। सो पहले रिजल्ट से क्या पता चला हमें, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स जब बम्बार्ड हुए, स्ट्राइक हुए गोल्ड शीट के ऊपर, तो उन अल्फा पार्टिकल्स की 99% अल्फा पार्टिकल्स की कोई डिफ्लेक्शन नहीं थी। तो क्या रिजल्ट निकला, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी बिकॉज 99% अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट without any deflection, they go straight without any deflection. So first observation, most of space of atom is empty. Second observation, some of alpha particles were deflected by gold sheet by some very small angles. So कुछ alpha particles आए, वो क्या हो गए स्टूडेंट, डिफ्लेक्ट हो गए through small angles, through small angles, they deflected through small angles. So दे डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स। तो अल्फा पार्टिकल्स कौन से हैं, पॉजिटिवली चार्ज, कौन से हैं, पॉजिटिवली चार्ज। अब वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब एटम के अंदर कोई पॉजिटिव मटेरियल बॉडी है, एटम के अंदर क्या है, कोई पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल बॉडी है, क्योंकि लाइक चार्जेस में क्या होता है, रिपल्शन होती है। जब ये अल्फा पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स आए तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या हुई, रिपल्शन। सो फ्यू अल्फा पार्टिकल्स सफर स्मॉल डिफ्लेक्शंस, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स सफर स्मॉल डिफ्लेक्शंस। तो इससे क्या कंफर्म हुआ कि एटम के अंदर कुछ है वो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स के हैं पॉजिटिवली चार्ज, और एटम के अंदर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स की क्या हो रही है, स्मॉल डिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब अंदर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं जिसके कारण से स्मॉल डिफ्लेक्शंस हो रही हैं। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या आई, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय गोल्ड शीट बाय वेरी स्मॉल एंगल्स, hence the positive charge in an atom is not uniformly distributed and the positive charge in an atom is concentrated in a very small volume. अब क्या, 99% जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट चले गए, इसका मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है भी एटम के अंदर, उसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, बहुत स्मॉल। क्यों, क्योंकि जो 99% आपके अल्फा पार्टिकल्स हैं वो तो स्ट्रेट चले गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। अब ये विदाउट एनी डिफ्लेक्शन चले गए। अब वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड थ्रू ए स्मॉल एंगल, इट मींस जो पॉजिटिव चार्ज है उसका जो वॉल्यूम है पॉजिटिव चार्ज का स्टूडेंट, वो क्या है, वेरी वेरी स्मॉल। एक सेकेंड, वो वॉल्यूम क्या स्टूडेंट, वेरी वेरी स्मॉल। So, some of alpha particle deflected by gold sheet by very small angles, hence the positive charge in an atom is not uniformly distributed. इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, वो किसी स्मॉल वॉल्यूम पे कॉन्सेंट्रेट हुआ है। क्योंकि अगर वो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता, फॉर एग्जांपल यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, और अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो स्टूडेंट ये यहीं से डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाती होनी, क्या होती, यहीं से डिफ्लेक्शन होनी स्टार्ट हो जाती। इसका मतलब 99% अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए थे, इसका मतलब यहां पे पॉजिटिव चार्ज था ही नहीं, तभी तो वो सीधे निकल गए। एंड वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स, इसका मतलब जब अल्फा पार्टिकल्स दे फ्लो फ्रॉम क्लोज टू दिस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, तब उनकी क्या हुई, स्मॉल डिफ्लेक्शंस। क्या हुई, स्मॉल डिफ्लेक्शंस। क्यों, अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज है, ये हमें पता था। अब इसका मतलब अंदर कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ने इस हैवियर अल्फा पार्टिकल्स को क्या कर दिया, डिफ्लेक्ट कर दिया। सो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बैकवर्ड्स थ्रू एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये स्टूडेंट देखिए, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड थ्रू एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। इट मींस अल्फा पार्टिकल स्टूडेंट हैवियर पार्टिकल है, इट मींस जो अंदर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है वो भी क्या है, हैवी है, क्योंकि हैवियर पार्टिकल्स को कोई क्या कर रहा है,
वापिस रिट्रेसेस, अब उसके पाथ से उसको वापिस भेज रहा है, इसका मतलब जो अंदर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है वो भी क्या है, हैवियर है। तो इसका मतलब क्या आ गया कि एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, क्योंकि वो पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर रही थी, और वो स्मॉल वॉल्यूम में है। क्यों? क्योंकि 99% अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट वे सीधे निकल गए, और जो सेंटर से आए अल्फा पार्टिकल्स दे रिट्रेसेस फ्रॉम देयर पाथ, वो वापस बैक हो गए। इसका मतलब अंदर कोई हैवियर बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज है, और वो कॉन्सेंट्रेट है कहां पे है, सेंटर पे है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स क्या है, हैवियर चार्ज पार्टिकल्स हैं। इसका मतलब अंदर भी कोई बॉडी है, वो भी क्या है, हैवियर है। सो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बैक, दैट इज ओनली अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स हैड नियरली एंगल, कितना आया डिफ्लेक्शन एंगल, 180 degree. So the volume occupied by positively charged particle in an atom is very small as compared to total volume of an atom. So क्या रिजल्ट निकला? एटम है स्टूडेंट, 99% स्पेस एटम की एम्प्टी है, क्योंकि 99% जो अल्फा पार्टिकल्स हैं दे सफर नो डिफ्लेक्शन, एंड 0.1% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स. So alpha particles are positively charged particles. It means there is a positively charged body inside the atom because there is a deflection of alpha particles. तो क्या होगा, अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, डिफ्लेक्शन का मतलब है अंदर कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर सकती है. एंड वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड एंगल्स ग्रेटर देन 180 डिग्री, मीन्स दे रिट्रेसेस फ्रॉम देयर पाथ. इसका मतलब अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है वो कहां पे है, सेंटर पे है, और वो काफी हैवी है. मतलब एंटायर मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट दैट पोर्शन बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स आर हैवियर पार्टिकल्स, और हैवियर पार्टिकल्स को वापिस रिट्रेस करने का मतलब है अंदर कोई जो बॉडी है उसका मास ज्यादा है, मतलब एंटायर एटम का मास किसी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हुआ है. सो क्या ऑब्जर्वेशन आई, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन एटम इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम बिकॉज 99% अल्फा पार्टिकल्स सफर नो डिफ्लेक्शन. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, स्टूडेंट कौन सा बना रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल? सो एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज. अब स्टूडेंट एटम में क्या है, कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, क्या है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, डेंस है, उसकी डेंसिटी क्या है, वेरी हाई बिकॉज दे डिफ्लेक्ट हैवियर अल्फा पार्टिकल्स, एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो वो जो स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी स्टूडेंट, उसका नाम क्या रखा, न्यूक्लियस. क्या रखा, न्यूक्लियस. और उस न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, बिकॉज प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल. सो ड्यू टू heavier body inside the atom, it means there are positively charged particles, it means there are positively charged particles, and it is a heavier body, it means there is a protons plus neutrons inside the nucleus because they deflect the heavier alpha particles, and entire mass of an atom is concentrated in the nucleus. So सारा का सारा जो मास है एटम का वो कहां पे कॉन्सेंट्रेट हुआ है, न्यूक्लियस पे. कहां पे हुआ इनसाइड द न्यूक्लियस. सो फर्स्ट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का पॉइंट, एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज डेंस एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस. एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, उसकी डेंसिटी क्या है, वेरी हाई, और उस न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कलेक्टिवली उसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स. क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स कलेक्टिवली प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का जो कंबाइंड नेम है क्या है, वो न्यूक्लियॉन्स. सो न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड एंटायर मास ऑफ एटम वो कहां पे कॉन्सेंट्रेट है स्टूडेंट, एंटायर मास ऑफ एटम न्यूक्लियस पे. कहां पे है, न्यूक्लियस पे. दिस इज द न्यूक्लियस. एंटायर मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन दिस स्मॉल वॉल्यूम nucleus, and nucleus is surrounded by negatively charged electrons. स्टूडेंट अब ये रदरफोर्ड का सेकंड पॉइंट क्या आ गया, दिस इज अ एटम, दिस इज ए न्यूक्लियस,
and electrons are revolve around the nucleus. Electrons are revolve around the nucleus in circular paths. In circular paths, these are the, for example, electrons, and these are revolve around the nucleus. This is the nucleus, and these are negatively charged electrons, and these are revolve around the nucleus in circular paths at very high speed, in circular orbits. This is the orbit, circular orbit. For example, this is the first orbit, this is the second orbit, this is the nucleus, and electrons are revolving around the nucleus. Electrons are revolving around the nucleus in circular paths with very high speed. वो हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, कैथोड रेज की स्पीड क्या थी इलेक्ट्रॉन्स की, 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड. एंड दी सर्कुलर पाथ्स, जो जिसमें इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट रिवॉल्व कर रहे हैं, जिस पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स, इस सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ऑर्बिट. क्या बोलते हैं? ऑर्बिट. सो ऑर्बिट इज ए सर्कुलर पाथ on which electrons are revolve. So atom is electrically neutral. Atom is electrically neutral. इसका मतलब जो न्यूक्लियस में, अब न्यूक्लियस में क्या है स्टूडेंट? पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज किसके कारण से है? प्रोटॉन्स के कारण से. किसके कारण से? प्रोटॉन के कारण से. अब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं. ओवरऑल एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इसका मतलब जो प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज है, टोटल चार्ज प्रोड्यूस बाय प्रोटॉन्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रॉन्स. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर इक्वल. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर इक्वल. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in an atom are equal. This is the proton and this is the electrons. अगर number of proton और number of electrons एटम के अंदर इक्वल होंगे तो एटम क्या होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एटम क्या होगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम, बिकॉज 99% अल्फा पार्टिकल्स कैसे निकल गए थे? स्ट्रेट वे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. इसका मतलब 99% जो एटम की स्पेस है वो खाली है. तो जो न्यूक्लियस है उसने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है दैट इज इन वेरी वेरी स्मॉल पोर्शन. तो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम. So according to Rutherford's atomic model, an atom yes, according to Rutherford's atomic model, so क्या है पॉइंट? an atom consists of nucleus. एटम के अंदर क्या है स्टूडेंट? दिस इज एटम. Atom consists of nucleus and nucleus is small in size. Volume occupied by nucleus is very small but carries the entire mass. जो पूरा का पूरा एटम का मास है स्टूडेंट वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हुआ है? न्यूक्लियस पे. कैरीज द एंटायर मास दैट इज कंटेन ऑल द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. मतलब कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. क्या है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट विच कंटेन्स इलेक्ट्रॉन. अब जो बाकी पार्ट बच गया, ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, वेरी स्मॉल इन वॉल्यूम. अब जो बाकी पार्ट बच गया वो सारा का सारा उसमें क्या है स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन्स. उसमें क्या है? दीज आर द सर्कुलर पाथ्स. यहां पे क्या इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे तो ये क्या है? ऑर्बिट्स. अब जो बाकी सारा पार्ट है वो किसका? इलेक्ट्रॉन्स का. उसमें क्या स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन्स. उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स. और एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस स्मॉल इन साइज, कंटेन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड रेस्ट ऑफ द मास पार्ट्स. जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बाकी बच गया उसमें क्या स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन्स. क्या है? इलेक्ट्रॉन्स. एंड दिस मॉडल वाज सिमिलर टू सोलर सिस्टम. जैसे सन एट द सेंटर वैसे न्यूक्लियस एट द सेंटर एंड प्लैनेट्स आर रिवॉल्व अराउंड द
sun as electrons are revolve around the nucleus. So this model is similar to the solar system. So limitations or drawbacks of Rutherford model of an atom. पहला drawback, position of electrons. So Rutherford proposed that electrons revolve around the nucleus in fixed orbits. So स्टूडेंट रदरफोर्ड ने हमें क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट. ये इलेक्ट्रॉन है और ये इसका फिक्स पाथ है, जो इसका सर्कुलर पाथ है ये क्या है? फिक्स है. वो हमें रदरफोर्ड ने बता दिया था. बट ही डिडंट स्पेसिफाई द ऑर्बिट्स. ऑर्बिट हैं कितने और हर ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिट. स्टूडेंट वो रदरफोर्ड ने नहीं बताया था. बट ही डिडंट स्पेसिफाई द ऑर्बिट्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिट. वो रदरफोर्ड ने नहीं बताया था. सो रदरफोर्ड ने क्या नहीं बताया था? स्पेसिफाई द ऑर्बिट्स. ऑर्बिट कितने हैं न्यूक्लियस के अराउंड, और जो उन ऑर्बिट्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं वो नहीं बताया था. रदरफोर्ड ने हमें बताया था एटम के अंदर एक हैवी पॉजिटिव चार्ज बॉडी है जिसका नाम रख दिया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं. उनको हमने ऑर्बिट बोल दिया, लेकिन उसने ऑर्बिट्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिट हमें नहीं बताए थे. एंड आल्सो एग्जैक्ट पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी न्यूक्लियस से कितनी दूर है वो भी नहीं उसने बताई थी. मतलब उसने क्या बता दिया हमें? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिक्स सर्कुलर पाथ मतलब ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं. ये तो उसने बता दिया था. लेकिन कितने ऐसे ऑर्बिट हैं और हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस से दूरी कितनी है, मतलब उनकी पोजीशन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की इस न्यूक्लियस से दूरी कितनी है, उनकी पोजीशंस क्या है इलेक्ट्रॉन्स की, वो उसने नहीं मेंशन की थी. तो ये फर्स्ट ड्रॉबैक आ गया, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स तो हैं लेकिन वो कितनी दूरी पे हैं न्यूक्लियस पे वो नहीं बताया, और हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो भी नहीं बताए, और नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने हैं वो भी नहीं बताए. ठीक है स्टूडेंट. सेकंड आ गया, ही डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम. उसने ये भी नहीं बताया था कि एटम जो है वो स्टेबल है. उसने कहा था कि एटम अनस्टेबल है. एटम क्या है? अनस्टेबल. लेकिन हमें पता है एटम्स क्या है स्टूडेंट? स्टेबल है, क्योंकि यूनिवर्स स्टेबल है, इट मींस कि एटम्स आर स्टेबल. लेकिन उसने क्या बोला था? एटम्स आर अनस्टेबल. सो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? इन द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ. ये उसने बता दिया स्टूडेंट, ये हम भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं. ये हम पढ़ चुके हैं. This means that motion of an electron revolving around the nucleus is accelerated. It means कि जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन है अराउंड द न्यूक्लियस, स्टूडेंट वो क्या है? एक्सिलरेटेड मोशन. कौन सी मोशन है? एक्सिलरेटेड है. वो रुदरफोर्ड ने बताया था एक्सिलरेटेड मोशन है. इफ चार्ज पार्टिकल अंडरगोज एक्सिलरेटेड मोशन, कहता अगर चार्ज पार्टिकल की एक्सिलरेटेड मोशन है देन इट मस्ट रेडिएट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली. उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लूज कर रहे हैं वाइल रिवॉल्विंग, क्योंकि वो कह रहा है कि जब वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे तो अपनी एनर्जी को यूज करेंगे. उनके पास जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की है, जिस एनर्जी के साथ वो रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवॉल्व करते करते वो अपनी एनर्जी लूज करते जाएंगे. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते करते अपनी एनर्जी लूज करते जाएंगे. अब जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहां से घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते अपनी एनर्जी लॉस कर रहा है, तो उसका मतलब वो क्या है? उसने कहा था कि उसका ऑर्बिट स्मॉल हो रहा है क्योंकि वो अपनी एनर्जी लूज कर रहा है. वाइल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज हो रही है. लूज होने के साथ साथ उसका जो सर्कुलर ट्रैक है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. वाइल लॉस ऑफ एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मोशन क्या है उसके अकॉर्डिंगली एक्सिलेटेड मोशन. अब जब एक्सिलेटेड मोशन होगी तो ड्यूरिंग मोशन अपनी एनर्जी क्या करेंगे? लॉस करेंगे. लॉस करने के बाद कह रहा है कि उसका जो सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर ट्रैक है, वो छोटा होता जा रहा है. छोटा होते होते अपनी एनर्जी लूज करते करते एट
अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स फॉल ओवर द न्यूक्लियस, कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के ऊपर फॉल कर जाएंगे, एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलैप्स कर जाएंगे। ओवरऑल जो चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और एटम खत्म हो जाएगा। एटम शुड कोलैप्स, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो गलत हो गया था। नील बोहर ने इसको एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो लूज नहीं हो रही है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसका जो सर्कुलर ट्रैक है वो छोटा नहीं हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के ऊपर फॉल नहीं कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर से एक बार देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ एंड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एसिलेटेड मोशन। एसिलेटेड मोशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली। इफ द इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, इसका मतलब उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, उसका सर्कुलर ट्रैक क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन शुड फॉल ऑन टू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, न्यूक्लियस पे फॉल करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिव चार्ज बॉडी, एंड नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलके क्या बन गए, न्यूट्रल, जीरो हो गए। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कोलैप्स कर गया। तो इसका मतलब उसने कहा था कि एटम अनस्टेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये हम पढ़ क्या रहे हैं, ड्रॉबैक ऑफ रुदरफोर्ड। तो दो पढ़ ली हमने, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें उसने नहीं बताई थी, और दूसरा उसने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया था। सो तीसरा उसने इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। स्टूडेंट ये लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हम हाइड्रोजन नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे आप ये वाला पॉइंट नोट कर लो, क्योंकि ये ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम में आता है, आपको एग्जाम में भी लिखना है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि जब हम हाइड्रोजन को एनर्जी देते हैं तो हाइड्रोजन हमें क्या देता है स्टूडेंट, कलर्स देता है। क्या देता है, लाइन स्पेक्ट्रा कलर्स देता है। वो कलर्स क्यों देता है, वो रदरफोर्ड ने नहीं बताया था। वो रदरफोर्ड ने नहीं बताया था। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम पिक्चर, कि जो हाइड्रोजन से स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और उसमें जो लाइंस मतलब जो कलर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, वो हमें रदरफोर्ड ने नहीं बताए थे। तो ये तीन ड्रॉबैक्स हैं जो आपने एग्जाम में लिखने हैं। और ये वाली डायग्राम है स्टूडेंट जो मैंने अभी बनाई थी, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की एसिलेटेड मोशन है। एसिलेटेड मोशन मतलब जब वो रिवॉल्व कर रहा है तो अपनी एनर्जी क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। लूज कर रहा है, उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। उसकी स्पीड कम हो रही है तो उसका जो सर्कुलर ट्रैक है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अल्टीमेटली डिक्रीज करते करते इलेक्ट्रॉन फॉल ऑन टू द न्यूक्लियस एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस collapse, atom collapse, but practically it is not possible. Okay student, and next atomic structure, बोहर थ्योरी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट।